Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for class 10th ICC. Class 10 I have taken the candidate. I took the chapter reproductive system. As you know already, nothing survives forever, still life continues in the universe. कोई भी हमेशा के लिए नहीं रहता है, फिर भी लाइफ का जो कंटिन्यूएशन यूनिवर्स में मतलब लाइफ में रहता है वर्ल्ड में. बिकॉज रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट फंडामेंटल फीचर्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गन. रिप्रोडक्शन जो है ये फंडामेंटल फीचर है सारे. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एट मोलिकुलर लेवल, सेलुलर लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल, जिस लेवल पर भी है सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इसको रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड it is defined as the production of new individuals by sexual or asexual means which can produce their own kind for the continuity and multiplication of their race by the living organism. All the body organs that help an animal to bring about reproduction, they collectively constitute its reproductive system. Now, there are the various modes of the reproduction, maybe asexual or sexual reproduction. When we ask about the asexual reproduction, in this mode of reproduction, there are no sex organs and there is no gamete formation. No sex organs are involved and no gamete formation. Any part of the body may help in the formation of the young one. It's always uniparental, means by the single parent only. This mode of reproduction can be seen as you see in amoeba, paramecium, euglena, hydra, eulothrix. All they show as asexual mode of reproduction. A bud separates out from the parent body of hydra and grows into the full animal. That is all. But in case of sexual reproduction, in sexual reproduction, there are present special sex organs are there. They are called gonads for reproduction. And these gonads, they means testes in the males and ovaries in the female. They produce special sex cells called gametes, sperms in the males and ova or eggs in female. One egg and one sperm fuse in the series of the steps called fertilization, producing zygote. The zygote later develops into the new offspring. फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट के बाद एम्ब्रियो. Male gonads and the female gonads generally in the different individuals such as animals are called unisexual and the sexual reproduction is biparental. मतलब एनिमल्स यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है, बाइपेरेंटल यानी कि दो पेरेंट्स होते हैं. बट इन फ्यू एनिमल्स सच एज अर्थवॉर्म, ऑल द इंडिविजुअल्स दे हैव बोथ टेस्टिस एज वेल. जैसे कि अर्थवॉर्म है, इसमें टेस्टिस और ओवरी दोनों ही होती हैं. बट दीज एनिमल्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल or hermaphrodite and the reproduction may be uniparental or biparental too. इसमें यूनिपेरेंटल नहीं, जो अर्थवॉर्म में भी सेक्सुएशन, हालांकि दोनों ऑर्गन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फिर भी जो सेक्सुअल मैचुरेशन कॉपुलेशन जो होता है वो दो अर्थवॉर्म्स में होता है. एक टेस्टिस एक ओवरीज आपस में कॉपुलेट करके न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं. सो द फिनोमेना इन विच द मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स of unisexual animals can be distinguished externally, that is called sexual reproduction. Sexual dimorphism or जैसे the differences you can see here is asexual reproduction monoparental, sexual reproduction it is biparental. In asexual reproduction it does not involve the formation and the fusion of gamete. Here it involves the formation and fusion of two types of gamete. No sex organs are formed, sex organs are always formed. All the divisions are mitotic, never involves meiosis, but it involves meiosis at one or the other stage, means in the formation of sperms and ova, meiosis occurs. New individual develops in a cell or a part of a parent. Here, new individual develops from the zygote or the fusion of the product of the two gametes. Offsprings are genetically similar. Offsprings are genetically similar, but either of the two parents and from each other. मतलब वो सिमिलर पेरेंट से होते हैं, लेकिन जरूर नहीं है. वो किसी एक से भी हो सकते हैं, दोनों से भी हो सकते हैं, या ग्रैंड पेरेंट से भी सिमिलरिटी हो सकती है. इट डज नॉट इंट्रोड्यूस एनी वेरिएशन इन द पॉपुलेशन.
so it is of no evolutionary importance, but it introduces variations in the population and handles of them. ये evolutionary point of view से भी बहुत important है. जो सेक्सुअल एक्सटर्नली जो मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं उनको हम सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कहते हैं. सच एक्सटर्नली विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स which are restricted in a particular sex, they are called secondary sexual character. जो विजिबल कैरेक्टर जिससे कि हमको सेक्स के अलग होने का पता चलता है उनको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बोलते हैं. जैसे बर्ड है, मुस्टैशेस हैं, डीप वॉइस, नैरो हिप्स, चेस्ट इन मैन, बल्की हिप्स, ब्रेस्ट इन वुमेन. तो ये जो फीचर्स हैं ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं. बर्ड, मुस्टैशेस, डीप वॉइस, narrow hips, they are all characteristics of male. And chest, bulky hips, breast in women. Up, how the reproduction takes place in the human being? In human beings, reproduction is sexual mode. They are unisexual and exhibit sexual dimorphism. इसमें यूनिसेक्सुअल होती है, सेक्सुअल डाइफोमोजम प्रेजेंट होता है. आइदर अ पर्सन हैज टेस्टिस, इट्स एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स, और ओवरीज एंड एसोसिएट. या तो उनमें टेस्टिस होंगे या उसमें ovaries होंगे. Now first we go through the male reproductive system, right? In male reproductive system, all the body organs of the man that help in the production of male gametes, the sperms and transfer of the semen or spermatic fluid. Semen, spermatic fluid is one and the same thing. And semen, it contains sperm in the vagina of woman, collectively constitutes male reproductive system. And the sperm producing organs, they are called essential. जिन organs से sperm का formation होता है उसको हम essential organs कहते हैं, and they are a pair of testes. Whereas all other organs of male reproductive system, they are called accessory organ, which are some types of supportive role. Various parts that constitute the male reproductive system and their functions, they are as follows. First, testes, testicles. It is singular, this is plural, right? Testes means they pair of oval organs. They are housed means they are present in a thin pouch of a skin called scrotum. जो scrotum जो thin pouch में present होते हैं, that is called the scrotum. In the thin pouch where they are placed. As आप ये देख रहे हैं, ये thin pouch है in the scrotum. इसमें जो ये है, ये present, ये है, ये जो बाहर का muscular pouch है, इसको हम scrotum कहते हैं. Each test is 4.5 centimeter long, 2.5 centimeter. This length is 4.5 centimeter and the width is 2.5 centimeter. And 3 centimeter thickness is 3 centimeter and weight about 10 to 15 grams. During development, they are present in the abdomen. Developmental stages में ये abdomen होती है below the kidneys up to 7th month. Later on, they descend into the scrotum through inguinal canal. इंग्विनल कैनाल के बॉडी में होती है जिसके थ्रू किडनीज के बैक से पीछे ये पीछे इंगुइनल इसमें डिसेंड होती हैं. दे आर हेल्ड इन द पोजीशन, जो पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करने के लिए जो होती है वो होती है स्पर्मेटिक डक्ट. स्पर्मेटिक कॉर्ड के जरिए जो ये होल्ड अप होती हैं. ये जो इसमें जो ये यूरेटर के पीछे जाता है इसके पीछे कॉर्ड यहाँ पर दिखाई नहीं देंगे. तो मेल जो बेटे देखिए एसेंशियल ऑर्गन्स होते हैं ए पेयर ऑफ टेस्टिस जिनका फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूसिंग द सेक्स. एक्सेसरी ऑर्गन्स जो होते हैं, एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये जेनाइटल डक्ट, ग्लैंड्स, सपोर्टिंग ऑर्गन. जेनाइटल डक्ट इट कैरीज स्पर्म्स आउट ऑफ द बॉडी. इसमें क्या है जेनाइटल डक्ट में, एपिडाइडमस, पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया, एजैकुलेटरी डक्ट और यूथर, ये इसके 4 पार्ट्स होते हैं. ग्लैंड्स में हमारे जो होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल और कॉर्पस ग्लैंड. यहाँ पर जो सपोर्टिंग ऑर्गन्स होते हैं स्क्रोटम और पेनिस. एसेंशियल सेमिनल वेसिकल दे प्रोड्यूस स्पर्म्स. प्रोस्टेट they help in the fertility and the motility of the sperm. Cowper gland they lubricate and neutralizes the acidity of the sperm so that they are able to survive. अब आप यहाँ पर देखिए इंग्विनल कैनाल is a passage between abdominal cavity and the sternum. जो हमारी abdominal cavity से 7th month के डेवलपमेंट में
जब ये वहां से नीचे स्क्रोटम में आती है, आफ्टर टेस्टिस डिसेंड इन, जब ये स्क्रोटम में आ जाती है, देन द इंग्विनल कैनाल गेट्स क्लोज, उसके बाद इंग्विनल कैनाल बंद हो जाती है मसल्स फाइबर्स, इसलिए वापस ये एब्डोमेन में नहीं जा सकती है. दे आर नॉट एबल टू असेंड इन एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज इंग्विनल कैनाल इट इज क्लोज्ड बाय मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू. मसल्स और कनेक्टिव टिश्यू से इंग्विनल कैनाल बंद हो जाती है, जिससे कि ये वापस एब्डोमेन में नहीं जा सकती है. टीयरिंग ऑफ इंग्विनल कैनाल, अगर उसको आप तोड़ेंगे कैनाल बाय एनी मीन्स इन द बल्जिंग आउट ऑफ द लूप ऑफ इंटेस्टाइन, तो ड्यू टू एब्डोमिनल प्रेशर, तो जो लूप जो इंटेस्टाइन का है वो बल्ज कर जाता है प्रेशर से, एंड दिस इज नोन एज इंग्विनल हार्निया. इसको इंग्विनल हार्निया मतलब जो आपके ये एलिमेंट्री कैनाल जो एक मेम्ब्रेन से थिन से गुडअप होती है, उसमें स्वेलिंग वो फूल जाती है, तो फिर उसको ऑपरेशन करके हटाना पड़ता है. हार्निया का ऑपरेशन आपने सुना होगा. If the testes fail to descend down into the, अगर टेस्टिस जो होते हैं उसमें स्क्रोटम में नहीं जा पाती, देन दे गेट डीजेनरेट, तो वो उनका डीजेनरेट, क्योंकि फर्दर डेवलपमेंट एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होता है, वो स्क्रोटम में ही आकर के होता है. अगर वो वहां रहेंगी देन दे कॉज स्टेरिलिटी, मींस दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म, उनमें स्पर्म्स का फॉर्मेशन नहीं होता है. दे आर इनकैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस स्पर्म. और स्क्रोटम टेम्परेचर इज 2 to 3 डिग्री लोअर देन द बॉडी टेम्प. इसका टेम्परेचर दो, क्योंकि नेसेसरी फॉर द स्पर्म्स के मैच्योर होने के लिए बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम की आवश्यकता होती है. इसीलिए हर टेस्टिस इन अ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड ट्यूनिका एल्बुजिनियम. ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो टिश्यूज होता है व्हाइट फाइब्रस टिश्यू, उनमें कैप्सुलेटेड होते हैं. दिस इन्वॉल्व्स डिवाइडिंग टेस्टिस into 200 to 300 स्मॉल कंपाउंड, और इसमें जो ये वाइट टिश्यू होते हैं 200 से 300 जो स्मॉल कंपाउंड लोब्यूल्स होते हैं उनमें होती है. ये देखिए आप, ये जो कंपार्टमेंट ये है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, और इसी ट्यूनिका एल्बुजिनिया के अंदर ये कैप्सुलर लाइक ये कंपार्टमेंट्स हैं, और इन कंपार्टमेंट्स में आप देखते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी के अंदर स्पल्स का दर्ज, तो ये लोब्यूल्स फॉर्म करते हैं. इन ईच 2 टाइप्स ऑफ द स्ट्रक्चर्स व्हिच हेल्प्स इन दिस. इन लोब्यूल्स के अंदर 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये, और ये जो होती है ये दे आर टाइटली क्वाइल्ड वेरी फाइन ट्यूब्यूल्स, बहुत बहुत ही महीन पतली होती हैं सेमिनिफेरस. इसके अंदर जो होते हैं दे कीप ऑन डिवाइडिंग एंड दे प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. यानी कि ये जैसे ये वॉल है तो इसके जो ये सेल्स है इनमें डिवीजन होता है, और डिवीजन हो करके ये गैमेट फॉर्मेशन करते हैं, और इन गैमेट को फॉर्मेशन करने के लिए इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं. तो जो गैमेट फॉर्मेशन वो स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, और जो इन द इंटरस्टिशियल और लाइडिक सेल्स होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं इसमें. ये जो लाइडिक इंटरस्टिशियल सेल लाइडिक सेल्स एक ही चीज है. दे सीक्रेट मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. इनका काम है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स एंड मेल सेक्स एक्ट. फेलियर टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन कॉजेज इम्पोटेंसी. अगर टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा. स्पर्म फॉर्मेशन तभी होगा जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन होता है. जैसे मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स इन मैन इट टेक्स प्लेस एट अ टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री लोअर देन द नॉर्मल बॉडी. जैसा कि आप, अगर लोअर टेम्परेचर इन टेस्टिस मींस मेंटेन इन अ स्ट्रेंज मैनर बाय द मूवमेंट ऑफ स्क्रोटल वॉल, तो वो अजीब तरीके से, जो कि स्टोल ये बॉडी के बाहर होती है लटकती है, तो जो बॉडी के बाहर होने की वजह से इसका टेम्परेचर कम होता है. ना इट्स टू हॉट द स्किन स्क्रोटम लूजन, अगर गर्मी होगी तो वो लूज पड़ जाती है, और अगर सर्दी होगी तो वो टाइट हो जाएगी. But in cold conditions, scrotum shrinks and draws the testes near the body for warmth. और condition in which testes fail to descend into the scrotum, अगर वो नहीं हो मतलब testes scrotum में नहीं आती है, then it remains in the abdomen, inactive हो जाएंगी. तो वो condition जो होती है वो cryptorchidism कहलाती है. यूनोकिज्म में क्या, फेलियर ऑफ सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है चाइल्डहुड केस में तो यूनोकिज्म कॉज होता है, मतलब चाइल्ड इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगा, इट विल बी स्टराइल. Underdeveloped and non-functional secondary sex characters like prostate, seminal vesicle, penis, एक्सटर्नल, ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं डेवलप नहीं है. अगर सर्जिकल प्रोसेस से आप टेस्ट तो उसको हम कैस्ट्रेशन में. कैस्ट्रेटेड मीन्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड यूनक्स. जैसे आप देखते हैं बुलक्स हैं, बल्स हैं, ये प्रोड्यूस, ये मेल काउस के कैस्ट्रेशन से प्रोड्यूस होते हैं. चलिए अब हम अपने वापस टॉपिक पर आते हैं. जेनाइटल डक्ट.
अब ये जो जेनाइटल डक्ट होती है, दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डक्ट्स एसोसिएटेड। अब इसमें जेनाइटल डक्ट आप देखेंगे तो ये कई तरह के जेनाइटल डक्ट्स होती हैं। जैसे आप देखिए ये है यूरिन, ये है जेनाइटल टेस्ट डक्ट है, ये है इधर, यहाँ पर ये है, ये देखिए सेमिनल वेसिकल, यहाँ पर स्पर्म्स टेम्परेरी स्टोर होते हैं, ये प्रोसेसर्स है, ये एपिडिडाइमस है, और यहाँ से ये सेमिनल वेसिकल से जाते हैं, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड होती है। तो अब इसमें जेनाइटल डक्ट में वेरियस टाइप्स ऑफ डक्ट्स आर एसोसिएटेड, पेयर ऑफ सिस्टम जो जेनाइटल रहते हैं, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस क्या होता है? ये आपका ये टेस्टिस के ऊपर, ये आपकी टेस्टिस है, ये जो येलो कलर, ये ये ऐसे ऐसे हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं एपिडिडाइमस। देन ए पेयर ऑफ वास्ट डिफरेंस, वास्ट डिफरेंस, ये वास्ट डिफरेंस है, एंड ए पेयर ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, ये इजैकुलेटरी डक्ट है, एंड यूरेथ्रा, दिस इज द यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा है, पीनिस जिससे निकलता है। अब हम एक एक पार्ट, एपिडिडाइमस, दे आर ए पेयर ऑफ हाईली क्वाइल्ड वेरी लॉन्ग थिन ट्यूब्स, ईच मेजरिंग 6 to 70 millimeters in length. The coil of epididymis are so closely that it is reduced to an oval structure on the upper and posterior side of the testis. Sperm produced in seminiferous tubules are poured into the beginning for the epididymis, and posterior end of epididymis continues as a sperm duct called as vas deferens. In addition to transportation of sperm, the epididymis also helps the sperms to attain maturity. यानी कि इसमें क्या होता है, यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन होते हैं, उसके बाद ये आपके एपिडिडाइमिस है, तो जो मैचुरेशन होता है वो इतनी लंबी कॉइल में, और उसके बाद यहाँ से ये स्पर्म डक्ट से जो आपका ये चला जाए, ये स्पर्म डक्ट से जो क्रॉस करते हैं वॉस डिफरेंशिया में seminal vesicle. Vas differentia, there is a pair of each long thin wall called each duct 45 centimeter in length. Duct और वॉस डिफरेंस, स्पर्म डक्ट और वॉस डिफरेंशिया एक ही चीज, ये स्पर्म डक्ट होती है, यही जो स्पर्म डक्ट ये है, ये स्पर्म डक्ट है, ये 45 सेंटीमीटर की लॉन्ग होती है। ये देखिए यहाँ से निकलती है, यहाँ से होकर के यूरेथ्रा, इसके अंदर होकर के, ये डक्ट के अंदर से होकर के ये प्रोस्टेट ग्लैंड या कॉर्पस ग्लैंड। Vas epididymis, तो ये vas differential sperm duct, posterior and epididymis moves upward. It passes out of the scrotum through the inguinal canal. It joins a duct seminal vesicle of its own side so as to ejaculate. The walls of the vas are muscular. Its passage is lubricated by the mucus to facilitate the movement of sperms through them. यानी कि ये vas difference, ये आपके देखते हैं, ये sperm duct vas difference, ये यहाँ से जाता है, इससे होकर यहाँ पर से आपके जो ये इजैकुलेटरी डक्ट, ये है इजैकुलेटरी डक्ट, यहाँ से स्पर्म जाते हैं, ये आपके यूरेथ्रा है, ये आपका यूरेथ्रा है, और ये यूरेथ्रा से बाहर ये इजैकुलेटरी डक्ट है, इस इजैकुलेटरी डक्ट से स्पर्म्स बाहर आते हैं। There are a pair of small duct. These are formed on either side of the urinary bladder by the fusion of the vas and a duct from a seminal vesicle. They pass through the prostate gland and open into the. ये prostate glands होते हैं, यहाँ से पास होकर prostate glands के अंदर के थ्रू ये seminal vesicle में they store sperms temporarily for a short while. और urethra exactly it is a narrow about 18 to 20 centimeters long passage that starts from the base of the urinary bladder, traverses through the prostate gland and penis. It opens at the tip of the penis, urinary aperture, common passage for both urine as well as the semen. It is differentiated into the five: upper prostatic urethra and traverse through prostate, middle membranous urethra that is not covered by any structure, lower spanial urethra which passes through the penis. It contains large number of mucus gland that secretes mucus. It is the process. तो देखिए डॉटर्स में क्या होता है, सबसे पहले स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है, स्पर्म प्रोड्यूस हुआ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, ये आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये मैंने आपका स्ट्रक्चर ये देखिए, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये स्ट्रक्चर है, इसमें होकर के ये वॉश से, ये टेस्टिस से, ये लॉन्ग टेस्ट, ये 45 सेंटीमीटर, तो ये सेमिनल नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स है, एफरेंट डक्ट से गया, अपर पार्ट ऑफ द एपिडिडाइमस, ये आपके एपिडिडाइमस, ये स्ट्रक्चर है, ये एपिडिडाइमस में यहाँ पर स्टोर हुआ। इसके बाद एपिडिडाइमस है मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द एपिडिडाइमस, हाइंड पार्ट ऑफ द टेल ऑफ द एपिडिडाइमस में गया, फिर ये स्पर्म डक्ट वास डिफरेंस में गया, वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर, उसके बाद ये यूरेथ्रा में गया। तो इस यूरेथ्रा में डालने के पहले यानी कि स्पर्म्स यहाँ पर आपके देखिए फॉर्म हुए, उसके बाद ये पर्टिकुलर डक्ट इसमें आए,
यहाँ से ये वॉस डिफरेंस के थ्रू ये गए, यहाँ पर ये प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड्स के होकर के फिर इधर ये यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाद ये कॉर्पस ग्लैंड और फिर ये पेनिस के थ्रू ये बाहर आए। अब इसमें जो एसेसरी ग्लैंड्स जो होती हैं, these glands are associated with the reproductive system of a man. They secrete certain secretions nourish seminal vesicle, prostate gland, Cowper's gland. Seminal vesicle, they are a pair of elongated convoluted tubular structure, seminal vesicle. They are present behind the null or lower part of the urinary bladder on either side. The seminal vesicles secrete an alkaline fluid. They mixed with the spermatic fluid. The fluid of seminal vesicle, the main function, it provides medium for the transportation of sperm, nourishing material for the sperm, helps in neutralizing. ये है सेमिनल वेसिकल, यहाँ से स्पर्म जाके ये यहाँ पर टेम्परेरी, तो यहाँ पर सेमिनल वेसिकल के ये फंक्शन है, मीडियम फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, नरिशिंग मटेरियल, हेल्प इन न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिटी ऑफ द मीडियम. अब आती है प्रोस्टेट ग्लैंड. अब इसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड, अब यहाँ पर आएंगे, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, इसके थ्रू आते हैं. प्रोस्टेट ग्लैंड इंफीरियर टू द ब्लैडर, इंफीरियर यानी कि नीचे, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के नीचे ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है. इट इज इंट्रोडर, इट इज द शेप एंड साइज ऑफ द चेस्टनट. इट्स फंक्शन इज टू सीक्रेट thin milky alkaline fluid. Thin milky alkaline fluid increases the motility of the sperm. Alkaline prostate neutralizes the acidity of the vaginal secret, increases the fertility and motility of the spermatozoa and neutralizes acid in the female vagina. सो बल्बिनरी ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड क्या होती है, उनको हम बल्बिनोट्रियल ग्लैंड्स भी कहते हैं, कॉर्पस ग्लैंड. दे आर टू स्मॉल बॉडीज अबाउट द साइज ऑफ पीस. They are situated on either side of the urethra, a little inferior to the prostate gland. They secrete alkaline mucus fluid which added to the semen helps in lubrication as well neutralizing the acidity of male, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया. अच्छा, अब इसमें सपोर्टिंग ऑर्गन्स क्या होते हैं? सपोर्टिंग ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्क्रोटम है, थिन पाउच स्किन that houses, मतलब जहाँ रहते हैं testes, scrotum suppose the testis, it maintains temperature to be lower than the body temperature. Low temperature is necessary for the maturation of germ. Penis, erectile intromittent organ hanging out from the abdomen in front of the scrotum. It can expand up to the length of 15 to 18 centimeter in a normal adult man. But the tip of the penis called glans penis, it is highly sensitive and slightly swollen. So glans is covered by a loose skin that is called purpose. In erectile tissues of the penis present in the large number of blood sinuses on sexual maturation, large amount of the blood rushes into these sinuses through arteries and it causes expansion of these sinuses and compressing the veins, hence blood cannot drain out of them. So this results in enlargement of the and making it rigid. Rigid मतलब कड़ा करता है. And the condition is called erection. During sexual intercourse, erected penis is inserted into the vagina and the penis releases semen into the vagina by the process called erection. Sperm जो male gamete होता है, it is highly specialized cells. They are produced by the seminiferous stimule by the testes through the process called spermatogenesis. Sperm का formation इस process है. Each sperm is microscopic, elongated, motile. Human sperm consists of 4 parts. Head, this is the head region. And last sperm at the top of the head present is small granule, ye acrosome structure present at the top. Neck, this is the neck region, middle region piece. This is the neck. Very small and present between the head and the middle. ये head और middle piece के बीच में ये neck होता है. And it contains 2 centrioles. यहाँ पर 2 centrioles होते हैं. Middle piece present below the neck contains spiral sheath of mitochondria. ये middle piece है, ये इसमें spiral sheath mitochondria की होती है. That provides energy for beating of the tail. Tail whip-like structure many times longer than the head. And by beating the tail, sperm is able to reach to the ovum further. इसके the tail helps in the movement of the sperm so they can reach from the vagina to the fallopian tube where the fertilization occur. Function क्या होता है? Acrosome secretes an enzyme. एक्रोसोम जो होता है ये एंजाइम सिक्रीट करता है, इसको हेलोनुरेस कहते हैं. इट हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन. इट डिसॉल्व्स द वॉल ऑफ द ओवम. माइटोकॉन्ड्रिया मिडिल प्लेट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर बीटिंग ऑफ द टेल. जो माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर रेस्पिरेशन, जिससे कि एनर्जी चाहिए होते हैं. एंड सेंट्रियोल्स ऑफ द नेक हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द स्पिंडल ऑफ द zygote that help in cleavage. And male pronucleus that fuses with the female pronucleus helps to restore the diploid number of chromosomes. So this is what all about the male reproductive system. Female reproduction, I'll ask you in the another video. Thank you. Any doubt, anywhere, ask in the comment section. But don't forget
to share the video and subscribe to my channel. Thank you.